Assalamu alaikum, namaste. Welcome back. You are listening to Fever FM on Exosat Shariateen. Mein hu Arjun Shahabuddin. This is the Wednesday drive time. All music, all artists, Pakistani, Zindabad. And like I said, and I have been saying for a good few weeks now, we are going to have Hakeem Mudassar Fahim Saab, all the way from Karachi in Pakistan, joining us today to speak about health. Actually, to start the program about health. And he's joining me over Zoom. And in a few moments, he is going to come live and really looking forward to speaking. And if you want to share your support and your love, that we've got someone really important joining us all the way from Pakistan, please, you can do so by texting in on 075033888694. So the program is going to be mixed, a bit of English and Urdu. Hakeem Saab is going to speak in Urdu primarily, but we can test his English as well. Maybe देखते हैं क्या होता है. But first of all, I'm actually going to give just a quick introduction to Tib because this is what it's all about. And then I'll give a brief introduction to Hakeem Mudassar Fahim Saab, and then we'll bring him in. So today, we are starting the show, and it's about embracing holistic health. Introduction to Tib. So I'd officially like to welcome all of our listeners to the wisdom of Tib, where we embark on a journey in the profound world of traditional healing. And in today's episode, we're going to delve into the principles and the philosophy that underpin Tib, shedding light on its holistic approach to health. Before we actually delve too much into Tib, we're going to learn about Hakeem Mudassar Fahim himself. So that's what's going to continue after this introduction to Tib. So, for those people who have no idea, Tib is rooted in ancient Greek and Islamic medicine. And it's a system that views the human body as a harmonious blend of elements. And this is really important because I think a lot of the time we just separate and segregate things all the time. So, the Tib system, which is a combination of Greek and Islamic medicine, is a system that views the human body as a harmonious blend of elements. At its core, it recognizes the interconnectedness of the physical, mental, and spiritual aspects of an individual. And this is what you don't get in modern medicine because a lot of it is just physical. So you go in with the physical ailments. So just for our listeners' understanding, the Tib actually looks at the mental elements and also the spiritual aspects in conjunction with the physical elements. And this holistic approach of Tib extends beyond merely treating symptoms. It seeks to address the root cause of illness as well. And we know that modern medicine, although it's absolutely fantastic in a lot of ways, it tends not to deal with some of the root causes. And in this system, health is not merely the absence of disease, but a state of balance and harmony within the body. And there's key principles of Tib, but I'm gonna come to that very shortly. There's like humoral theory, individualized treatment, natural healing, preventive healthcare. But I'm gonna save that for Hakeem Saab to go into that in a little bit more detail. So Hakeem Mudassar Fahim Sahib, who's going to enlighten us with all of this wonderful, wonderful knowledge, inshallah. Hakeem Mudassar Fahim Sahib. I'll give his introduction in English first, actually, and then we're going to slowly go into a bit of Urdu. So Hakeem Mudassar Fahim Sahib, who's a researcher, a physician, and a teacher, and he's a prominent figure in complementary and alternative medicine. And you'll get to hear this term CAM quite often because CAM is the abbreviated version to say complementary and alternative medicine. So a researcher, physician, teacher, and a prominent figure in the field of complementary and alternative medicine, Mr. Mudassar Fahim is globally recognized as a distinguished herbal physician, known for his exceptional medical services and carries an enduring legacy in the realm of complementary and alternative medicine. His legacy is founded on academic excellence, a commitment to holistic well-being, and a passion for equal health opportunities in neglected communities in particular. And we shall find out a little bit more of how Hakeem Saab dedicates himself to helping underprivileged communities in Pakistan and around the world. He holds a significant place in medical research circles worldwide as well. So it's not coming from his personal interest. He's actually a key figure in the research circles on a global level, encompassing areas such as Eastern medicine, yani the Greek methods of alternative medicine, cupping, hijama, which I think many people in the Western world are becoming familiar with, color therapy, and these are the next three things I don't think people are too much aware of. So I'm really looking forward to learning about this. Color therapy, reflexology, and meditation.
And these practices offer solutions to personal life challenges, domestic turmoil, psychological issues, spiritual tranquility, and physical ailments, benefiting people from across the globe. So, जनाब मुदस्सर फ़हीम आलमी सतह पर अपनी नुमायां तिब्बी खिदमात के सबब एक मुमताज़ हर्बल डॉक्टर के तौर पर मुतारफ़ हैं, जो तकमीली और मुतबादल तिब यानी कि कैम के हल्का में एक लाजवाल मीरास के वारिस हैं। उनकी विरासत तालीमी फजीलत, कुल्ली और मजमूई फ़लाह बहबूद के अज़म और पासमानदा बरादरियों सेहत के मसावी वाक़े पहुँचाने के जज्बे से जुड़ी हुई है। 3 दहाइयों में जमा की गई महारत के बेमिसाल दौलत के साथ मुतबादल शिफायाबी के तरीकों, मशरकी तिब यानी कि यूनानी, मुतबादल अद्वियात के तरीकों, हिजामा, कलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, मुराकबा और तिब्बी तहकीक के हल्के के अंदर एक रोशन मुकाम रखते हैं। उनके ज़रिए दुनिया भर से अफराद अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लक घरेलू उलझने, नफ्सियाती मसाइल, रूहानी सुकून और जिस्मानी अमराज के इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। So after a very, very long introduction, I think that was quite important for me just to set the scene and the context, because जैसे मैंने बोला कि ये 12 हफ्तों का प्रोग्राम है, and Hakeem Mudassir Fahim Saab is going to be my co-pilot. You know, for the next 12 weeks, we're going to be doing at least 1 hour a week together. तो ये मेरे co-pilot भी हैं, and of course he's a teacher to all of us. So without further ado, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हफ्तों की, या मेरे ख्याल में शायद 2 महीने भी हो गए होंगे जब से हमने बात शुरू की थी, एंड अब हम उस मौके पे पहुंच गए हैं कि वे लाइव ऑन एयर। सो मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान। एक सवाल तो पहले ही आ गया, लेकिन मैं आपको दोहरा देता हूँ, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं चाहिए। किसी ने ऑलरेडी पूछा कि कैन यू प्लीज आस्क हिम अबाउट अंडर एक्टिव थायराइड इफ यू हैव टाइम। सो एक सवाल ऑलरेडी आ चुका, लेकिन उससे पहले वी वांट टू लर्न अबाउट हकीम मुदस्सिर फहीम साहब। और योर हीलिंग जर्नी commenced with a strong educational foundation closely linked to health sciences। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है, बल्कि मैं जो उर्दू वर्जन है वो शेयर करूँ, क्योंकि हम उर्दू में अभी बात करेंगे। तो आपका तालीमी पस मंज़र सेहत की साइंस के साथ व्यवस्थित है। कराची में मौजूद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन तिबी इदारा हमदर्द यूनिवर्सिटी से फाजिल अल तिब व अल जराहत, आई होप आई प्रोनाउंस दैट करेक्टली, जी ठीक है, के बाद तिब मशरकी में ग्रेजुएशन करते हुए ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर की डिग्री हासिल की। इल्मी मशागल को जारी रखते हुए मास्टर ऑफ फिलॉसफी एम.फिल के तहकीकी अलूम से खुद को मजीन कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आपका ये शौक कहाँ से शुरू हुआ टू डू योर ग्रेजुएशन एंड योर लर्निंग इन दिस टाइप ऑफ हेल्थ? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, रेडियो फीवर का, मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके जरिए उर्दू हिंदी बोलने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी कम्युनिटी से कम अपनी मुखातिब हो सकूंगा और अपनी मैं कुछ बात रख सकूंगा। मेरा इतना अच्छा तारुफ आपने कराया कि मेरा इतना अच्छा तारुफ महल में किसी ने ऐसे किया भी नहीं होगा जितना अच्छा तारुफ आपने करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर देखें, जैसे मेंशन आपने किया कि मैं एक तिब्बी घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद हकीम फजल रहमान कुरैशी अल अजीमी के नाम से। वो कॉलम निगार भी थे, मुख्तलिफ अखबारात में लिखते थे, मुख्तलिफ मज़ामीन में लिखते थे जो इंटरनेशनल मज़ामीन थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका इंतकाल हुआ। अचानक उनका इंतकाल हुआ था। उस टाइम हम लोग, मैं तिब के लिए, मैं उस तरफ मेरा रुझान था। मैं एक ऐसा बच्चा था जो बैक वक्त 2 कश्ती में पाँव रखने का आदी था। तो एक तरफ मैं आर्ट्स एंड उसकी तरफ कुछ कर रहा था, साथ में मेरा रुझान था तिब की तरफ भी। तो मैं तिब की तरफ एडमिशन लेके सेकेंड ईयर में था कि मेरे वालिद साहब का अचानक इंतकाल कर गए। उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे कुछ पेशेंट्स, जो हमारे जो फैमिली के जो पेशेंट्स थे, उनका नंबर बहुत ज्यादा था क्लिनिकली, नंबर 1। नंबर 2, मेरे वालिद साहब चूंकि वो राइटअप की तरफ थे, कुछ कॉलम निगार थे,
तो कुछ ऐसी तरतीब हम लोगों ने बनाई कि कुछ जिम्मेदारियां मेरे एक भाई ने ज्यादा उठाई, दोनों मैंने मैंने ही उठाई दोनों, लेकिन एक रुख फैमिली के बाकी लोगों की तरफ चला गया, लेकिन जो लिखना लिखाना और पब्लिक से इंटरेक्शन वाला जो काम था वो मेरी तरफ आ गया। तो इस दौरान मुझे अपनी बेसिक तालीम जो थी, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर राइट जो बुनियादी तालीम है तिब की, उसको कहते हैं फाजिल तिब वल जराहा, FTJ के नाम से कहते हैं। वो भी मेरी गुड लक है, मुझे शानदार तरीन इदारा अंदर से हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में, उनकी शागिर्दी में कहना चाहिए, मुझे वो अपना FTJ का 4 साल के मामला थे वो पूरे करने का मौका मिला। इस दौरान मैं कॉलम वगैरह लिखता रहा, पब्लिक इंटरेक्शन होती रही, खतूत आते थे बहुत ज्यादा, उन खतूत के जवाब देना, टेलीफोन कॉल्स अटेंड करना, उनको उसके लिए डील करना। अब ये एक जोक, एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, और अब मेरा ये जोक बन ही रहा, शौक तो बना था ही, लेकिन अभी मेरा जोक बनता जा रहा था। और मेरे इनके माहौल ही यही था। ठीक है, मेरी फैमिली के अंदर डॉक्टर हकीम ये थे। तो ये जो आपका सवाल था कि इस तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा, तो फिर ये हुआ कि मैं कराची जैसे गुंजानाबाद इलाके से, मेरे कुछ मेरा चूंकि ताल्लुक मेरा कुछ थोड़ा तसव्वुफ के साथ भी है, तो मेरे जो शेख हैं उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा एक बहुत दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे थोड़ा सा इन खिदमात को पहुंचाया जाए। तो फिर मैं वहां पे गया और फिर वहां रहना शुरू किया, फिर देखा समझा वहां के एनवायरनमेंट को। तो मेरे उस एनवायरनमेंट में ब्लू साइन बहुत ज्यादा है, या यकीनन ये ब्लू साइन जो है, ये इससे वास्ता इंग्लैंड के लोगों का बहुत ज्यादा पड़ता है, डिप्रेशन के हवाले से। बारिश वाला माहौल, डार्क माहौल, है ना, सूरज नहीं है। तो ये चीजें मिलके, अब्टाबाद का भी इसी तरीके से था जहाँ पे मैं रह रहा था, हमारा डिवीजन में। तो मुझे मैंने एक चीज तय कर ली थी कि जो भी हो जैसे भी हो, मुझे इस डिप्रेशन पे काम करना है, इन लोगों की डिप्रेशन पे काम करना है। यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। एज ए तालिब इल्म, सादे तालिब इल्म से मैं एक ऐसे अम, फिक्र अंगेज, फिक्रमंद किस्म के फिजिशियन की तरह मैं उस तरफ टर्न हुआ। तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से कंटिन्यू करना था, वो BMS मैंने किया दोबारा, वो 5 साल डिग्री। उसके बाद मुझे मैं फिर MPhil की तरफ आ गया। और ये सफर अभी भी मैं इस इस क्या कहना चाहिए, इस सफर में अभी मेरा, अभी मैं मुसाफिर हूँ, अभी तो सफर शुरू हुआ है। तो अल्लाह ने किया, आपके अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मुझसे मुलाकात हो गई, जैसे तैसे करके अब मैं आपके सामने। और आप ये करते करते आप इस पोजीशन पे पहुंच गए कि आपकी जो मेडिकल सर्विसेज और एक्सपर्टीज पूरी दुनिया में इस वक्त अभी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। your contributions extend internationally, providing health service and medicine to patients from Turkey, Syria, Sham, UAE, Saudi Arabia, Thailand, यहाँ भी अमेरिका, कनाडा एंड यूरोप। तो इसके हवाले से देखें, आपने अभी जिक्र किया कि किसी पसमानदा इलाके में आप गए थे और माउंटेनस वहां से शुरू हुआ, लेकिन जी। कुछ ही सालों में आपके पेशेंट्स पूरी दुनिया में हैं इस वक्त। जी। तो इसके हवाले से आप थोड़ी तफसील दें, किस किस्म के मसाइल लोग लेकर आते हैं आपके लिए और किस किस्म के खिदमात हैं आपके उनके लिए। अच्छा, मैं जो मेरे पास क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स वो ऐसा था, उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है वो था वो डिप्रेशन के साथ। जैसे वहां पे पेट के अमराज बहुत ज्यादा लोग लेके आने लग गए, कुछ डिस्कम्फर्ट्स, ठीक है, कुछ बाउल की मूवमेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट्स, कभी वो लूज मोशन की बात कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि जी हम कंफर्टेबल नहीं है वॉशरूम में, है ना। कुछ इस टाइप की कंप्लेंट्स जो जहां से मैंने जब गौर शुरू किया, तो वो सब के सब वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन की वजह से था। बाउल मूवमेंट्स चेंज होना शुरू होती है, तो ज्यादातर लोग ये समझे कि हम गैस के मरीज हैं, हम कब्ज के मरीज हैं, हम पेचिस के मरीज हैं। लेकिन जिन लोगों को, जिन साथियों, जिन दोस्तों को, और फिर जिस पेशेंट्स को भी हमने ऐसी दवाएं दी जो डिप्रेशन के की कॉज पे काम करती है, तो हमने देखा कि उनका पेट ठीक हो रहा है। ठीक है, तो हम कहने को तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा अमराज वहां पे आए पेट के डिस्कम्फर्ट के, लेकिन वो डिप्रेशन के पेशेंट थे। अच्छा, यही लोग थे जो जो आके हमें कहते थे कि वो इंसोम्निया के शिकार है, खास तरह की मैनियक कंडीशंस के शिकार हो रहे हैं। फिर उनके अंदर जो उनकी जो बच्चे आ रहे थे, जो अलार्मिंग था, और मेरी अपनी जो सारी खिदमात है मैंने कहीं मेंशन भी किया हुआ है,
वो था सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट, जो बच्चे हैं, सीपी चाइल्ड कहते हैं। तो वो बच्चे जो माँ बाप की अ, के करीबी कजन मैरिज और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाले अमराज, खवातीन के हमारे यहाँ आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। तो उस ऐसी कंडीशन में जो खवातीन जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन बच्चे के अंदर उस टाइम पे वो हाइपोक्सिया वाली कैफियत शुरू होती है, उनके ब्रेन को उस टाइम पे ऑक्सीजन ना नहीं मिल पाता, तो उनकी ग्रोथ मुतासर हो जाती है। तो क्या होता है, वो बतदरीज माजूरी की तरफ जाते हैं। जरा इंग्लैंड के अंदर भी है, पूरी दुनिया में, तुर्की में मैंने बहुत ज्यादा देखे पेशेंट, पाकिस्तान में भी है। तो वो फिर ये वाले केसेस बहुत ज्यादा मेरे पास आए। फिर स्किन डिजीजेज ज्यादा हैं, उसकी वजह भी वही है कि सूरज के साथ ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं है, वो पोर्शन आपके कवर है, ज्यादातर गर्म चीजों के साथ कवर है। तो ये इस तरह के मामला आते हैं। लेकिन मैंने किन चीजों को डिस्कस किया, चूंकि मेरा वास्ता मेरे रिसालों की वजह से, जिनमें मैं कॉलम लिखता था, वो इंटरनेशनल रिसाले थे। तो हमारे पास 10,000 खतूत आते थे एक महीने में। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी था, और मैं 10,000 खतूत एवरेज, ये मुझे नहीं पता था, ये हमारे इदारा बताते थे, या इस मरतबे की एवरेज आपकी 10,000 लेटर है, 10,000। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जवाब भी देता, तो उन्हें खतूत पे सो भी जाता था। तो उस चीज से ये हुआ कि मेरा वास्ता फिर हर किस्म के पेशेंट से पढ़ना शुरू हुआ, कुछ ना कुछ चंक्स मेरे दिमाग में जाना शुरू हुए। फिर मुझे उनके लिए चूंकि काम करना था। हमारे तिब में एक बात की जाती है कि किसी भी मर्ज की दवा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मर्ज का मरीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो मर्ज का मरीज ही नहीं आएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। फिर वो मरीज का वहां पे थोड़ा सा स्टेबल रहना, आपके साथ जुड़े रहना जरूरी होता है। हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में, इंडिया में भी इसी तरह, लेकिन पाकिस्तान के हमने देखा कि थोड़ा सा मरीज जो है वो चूंकि वेल अवेयर नहीं होता अपने डिजीज के हवाले से, तो वो थोड़ा सा जल्दबाज होता है। फिर ये है कि वो फौरी तौर पे वो ठीक हो जाना चाहता है, ज़ाहिर है, मुआशी सूरत हाल की वजह से वहाँ वो फोकस करना चाहता है, फिर अखराजात को वो कम करना चाहता है, इसलिए उसकी कोशिश होती वो जल्दी से बस ठीक हो जाए। जब वो जल्दी ठीक होने के लिए कुछ कोशिश करता है, उससे जो कॉम्प्लिकेशन हमें आती हैं वो एक अलग बहस है। उसको मैं हमने वो भी सीखा, अमराज को सीखा, लेकिन अमराज के इलाज के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस। मतलब एक पेशेंट आ रहा है कि वो आपसे आगे कह रहा है कि जी मैंने आपकी दवाई ले रहा हूँ, लेकिन वो बाहर जाके वो दूसरी तरीका इलाज की 3 4 5 जो भी तरीका इलाज राइज है, उन सब की वो मेडिकेशन करवा रहा होता है। तो ऐसे उसमें आपको उसमें से जांचना है, ढूंढना है कि इसमें से दवाई के असरात कौन से हैं, ठीक है, और बीमारी के असरात कौन से हैं, क्या बीमारी बेहतर हुई है, और फिर डिस्टेंस से करना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के तवज्जुह से, जैसे भी हम इतनी दूर से बात कर रहे हैं, तो पहले तो फोन पे भी बहुत कम लोग अप्रोच कर पाते थे मुझे, लेकिन फिर भी वो उनका नंबर भी डेली के हिसाब से बहुत ज्यादा था। तो अब ये क्या, अब ये कहा जाए कि आपने ज्यादा किन पेशेंट से को डील किया। मैंने हर किस्म का पेशेंट डील किया, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, चाहे वो कुछ भी है। क्या हमें सब में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की, हम ये कहेंगे कि हमने जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका भरपूर साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनके बर्डन को हमने कम किया। यस, तो इस ये मैं कह सकता हूँ कि हमने इसको डाइट के थ्रू, होम रेमेडीज के थ्रू, जरा अब एक पेशेंट है, फर्ज करें कैंसर है, कैंसर तो अपनी जगह पे है, वो उसको मॉडर्न साइंस देख रही है बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता है, खिदमात अपनी पेश कर रही है। लेकिन वो एक खास किस्म की, वो कहता है कि जी मेरा दिल नहीं लग रहा। अब वो कितनी मेडिसिन खाएगा, वो कहता है कि जी मुझे नींद भी नहीं आ रही, मुझे यूरिन में बर्निंग भी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरे मैदा अभी खराब हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे पेन भी है। ठीक है, तो उनके पास आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है, ये आपके सुनने वालों को भी मैं अभी से एडवांस में बता दूं, कि आपके पास टिप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि बाकी जितनी साइंसेज है वो एक एक सिम्टम की दवा देगी या एक एक तकलीफ की दवा देगी। तो हॉलिस्टिक अप्रोच दिखाते हुए टिप क्या करती है कि उन चीजों की जड़ तक पहुंच के वो एक ऐसी दवा ढूंढती है जिससे आपकी 5 6 अलामतें रफा हो सके या कम हो सके बैक वक्त। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रही, ये मेरी नाचीज कोशिश, पता नहीं अल्लाह को क्या कबूल होगी नहीं होगी, या हमारे पेशेंट्स को कितनी समझ में आई। तो ये मेरा सफर था। नहीं, बहुत ही अहम बातें हैं हकीम साहब, स्पेशली ये जो आपने अभी फरमाया कुछ लम्हात पहले। आई थिंक इट विल रेजोनेट विद मैनी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ही है कि आप एक तरह से जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ कंपटीशन नहीं है,
और बल्कि तिब उसी का साथ देती है। एंड आई थिंक दैट वाज कि आप साथ साथ चल रहे हैं एंड इट टेक्स द बर्डन ऑफ, क्योंकि अगर आप देखें ना वेस्टर्न दुनिया में द एनएचएस इन दिस कंट्री और अमेरिका में बेशुमार बर्डन है हेल्थ पे, यू नो ऑन द हेल्थ सेक्टर, ऑन द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, जो पब्लिक हेल्थ जिसको बोलते हैं, बेशुमार बर्डन है, मसले मसाइल हैं। और अभी मेरे ख्याल में कुछ ऐसे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं यू नो एट ऑल लेवल्स जो देख रहे हैं कि यू नो हाउ डू वी टेक द बर्डन यू नो ऑफ यू नो आवर सिस्टम, के क्योंकि लोग यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा हैं लेकिन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज नॉट एज गुड। ये सारे अब इस पे अग्री करते हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि यू नो पीपल आवर मेडिसिन आर वर्किंग, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात जो मेरे समझ में, जब मेरे भी बल्कि डॉक्टर मोहम्मद सत्तार साहब वो यहाँ शो भी करते हैं और हमारी काफ़ी गुफ्तगू होती है उनके साथ, और वो ट्रेडिशनल डॉक्टर हैं, लेकिन इज़ वेरी ओपन, और हमने बहुत ही ओपन कॉन्वर्सेशंस एक दूसरे के साथ की हैं। और जो मेरी समझ में है कि हेल्थ सेक्टर, उसका मतलब है कि कम डॉक्टर, कम अस्पताल और कम क्लिनिक्स, आपको पता लगेगा कि यू हैव अ हेल्थी पॉपुलेशन। ऐसे ही जितने है। ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, जितने ज्यादा अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, जितनी ज्यादा क्लिनिक्स की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस वी आर एक्चुअली हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो यू नो वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, और इसी लिहाज से ये जो आपने फरमाया कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द सिस्टम टू टेक द बर्डन ऑफ द करंट हेल्थ सेक्टर, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। जी अभी देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे कुछ लोगों का कुछ फैसिलिटीज को ज्यादा प्रोवाइड करना ये वहां की कामयाबी नहीं है, ये वहां की नाकामी है। देखिए कुछ इलाकों अगर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं मसलन सिक्योरिटी के हवाले से, अगर कुछ सेक्टर्स में आप गौर करेंगे कि अगर सिक्योरिटीज के लिए कुछ जगहों पे ज्यादा आर्मी ज्यादा पुलिस पे वो डिप्लॉय करनी पड़ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या नजर आ रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी सूरत ज्यादा अच्छी नहीं है। सही। ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पे ज्यादा डॉक्टर ज्यादा क्लिनिक ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, तो इसका मतलब ये कि ये वार्निंग एंड अलार्मिंग है कि वहां के लोगों की सेहत की सूरत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि आप एक खिदमत देती हैं, अगर एक मुल्क की सतह पे जब कोई सर्विसेज दी जाती हैं बहुत जबरदस्त हैं, और वो एक मुल्क कोई सा भी हो वो ये बर्डन अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसका असर क्या होता है, उनका असर ये होता है कि आवाम के ऊपर उसका बर्डन आता है, खासतौर पर गजा की शक्ल में। अब जो इम्पोर्टेंट बात जिस तरफ मैं रुख मोड़ना चाहूंगा वो ये है कि जो हम लोग तिब जिसकी हम बात कर रहे हैं तिब, मैं किसी एक तिब का नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे हम एक तिब के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ गुफ्तगू ना करें। हम तिब की से मुराद होगी कि इंसान जब से आया, जब से वो जिंदा है, सांस ले रहा है और खा पी रहा है, ज्यादा बीमार भी हो रहा है तो अपना इलाज मुआवजा भी कर रहा है, वहां से शुरू करेंगे और आज के मॉडर्न साइंस में आज के दिन तक हम इसको डिस्कस करेंगे हम कहाँ खड़े हैं। तो तिब एक ऐसी चीज है इसका स्टार्ट ही हम ये देखते हैं डाइट को कंट्रोल करने से है। ये अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न साइंस के की रो में मॉडर्न साइंस की रो में मॉडर्न लोगों ने कुछ चीजों को छोड़ दिया, जिसके लिए हेल्थ साइंसेज ने बहुत कोशिश की कि आपको ये गाइड कर सकें कि इन ये हेल्थ के पैरामीटर्स है, एक्सरसाइज कैसी जरूरी है, कैसी गजा जरूरी है, कैसा लाइफस्टाइल जरूरी है ना। तो तिब एक ऐसी चीज है जो आपको बैक वक्त, मसलन मैं अगर आपका गोश्त बंद करूंगा कि आपने गोश्त नहीं खाना, तो मैं खाली इसलिए नहीं बंद करूंगा कि मैं मुझे लग रहा है कि आपका इससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है या आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। मैं ये देखूंगा क्या इकोनॉमिकली आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके सोशल कुछ प्रॉब्लम इस गोश्त की वजह से हो रहे हैं, क्या इसके रूहानी असरात कुछ आप पे आ रहे हैं, क्या इस गोश्त के छोड़ने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो यस ऑफ कोर्स मैं आपको डायग्नोज करके कहूंगा कि आपको गोश्त छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बदले में क्या खाना है ये भी और मेरा हकीम काम साहब, है, मुझे पता है। अभी हम इधर क्योंकि एडवर्ट्स का वक्त आ गया है, तो वो भी रेडियो पे चलाने पड़ते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू फिनिश दिस लिटिल सेगमेंट ऑफ नाउ, क्योंकि अब आप अभी वो जो होलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग है इसी की जी हाँ। मिसाल दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे ये लगी है, क्योंकि हम तो बचपन से मानते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड,
लेकिन कुछ चीज़ों में जब हम हेल्थ पे देखते हैं तो वो इंटरकनेक्शंस हमें नहीं सिखाई जाती। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच आप मुझे और हमारे सामीन कि इंशाल्लाह हमारे कलूब और हमारे दिमाग और ख्याल खोलेंगे इंशाल्लाह to explain more about addressing the spiritual, mental, emotional, physical aspect। और आपने बिल्कुल ज़बरदस्त गोश्त की मिसाल दी है कि आप अगर आपको गोश्त कम करना है या बंद करना है तो ये बाकी चीज़ों को साथ देखना पड़ता है। तो जब एडवर्ड्स के वापस आएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो होलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग है इस पे थोड़ी गुफ्तगू करें और हमें समझाएं कि ये क्या दरअसल है क्या। मैं हाजिर। Thank you. Right, time for the adverts. Do not go anywhere. We're going to be back in a jiffy. खुश आमदीद and welcome back. This is Fever FM on 107.3 and मैं हूँ आरजे शहाबुद्दीन and joined by the wonderful Hakeem Mudassar Fahim Saab all the way from Karachi in Pakistan. तो हम अपनी गुफ्तगू को ओह मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, ये इतना मैंने गप किया है और नो वन कुड हियर इट बिकॉज मैं भी सोचा था यार आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे बात कर रहा था हकीम साहब, लेकिन मैं आपसे बात करने के लिए मुझे फेडर नीचे करना पड़ता है और ठीक है। अभी जो है ना एडवर्ड का फेडर नीचे किया खत्म हुआ लेकिन अपने माइक का ऊपर नहीं किया। तो मैं ये फरमा रहा था कि खुश आमदीद, वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे शहाबुद्दीन एंड यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव टाइम Wednesday drive time, all music, all artists Pakistani, but this time we've taken a bit of a break. We have a wonderful Pakistani all the way from Karachi, Hakeem Mudassar Fahim Saab, who is expert on तिब। तो इस प्रोग्राम का नाम तो हमने बताया भी नहीं है कि तिब्बी हिकमत की बातें। ये दुरुस्त है हकीम साहब के यही नाम? या रखते थे तिब की हिकमत, तिब की हिकमत, विजडम ऑफ तिब। विजडम ऑफ तिब। चले इंग्लिश में विजडम ऑफ तिब और जी हाँ। तिब की हिकमत। तो ये है हमारे वेंसडे का प्रोग्राम 5 to 6 every Wednesday for the next 11 weeks, so it's 3 months, so we've the first show is today for the next 11 weeks. And just before we left, we were nicely coming on to explaining and describing the holistic approach that Tib gives towards our health and healing. And Hakim Dasar Fahim staunchly advocates for holistic healthcare, addressing the spiritual, the mental, emotional, and physical aspects of patients' lives. तो मैं चाहूँगा कि हकीम साहब इस पे आप मजीद गुफ्तगू करें कि इसका मतलब क्या है, holistic approach to health, और ये जो रूहानी, जहनी, हमारा इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट्स, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? देखिए शाह भाई, इंसान एक ऐसी तखलीक है, ऐसी एक मखलूक है जो कि ठीक है मटेरियल से बना हुआ है, वो एक मादे से बना हुआ है, उसके अंदर मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, जहां उसका वो एक छूने वाली चीज, महसूस करने वाली और दिखने वाली चीज है, उसके साथ उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इमोशंस है उसके साथ। उसके बाद वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक पर्सनैलिटी रखता है। फिर उसके साथ उस जो पर्सनैलिटी रखता है तो वो अपना एक स्टेटस बनाता है, उससे वो अच्छा या बुरा करके जो कुछ वो जमा करता है वो एक रूहानियत का एक एक बर्डन लेके चल रहा होता है। ठीक है, तो अमराज को जब हम डिस्कस करते हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि जब उसका बर्डन रूहानी तौर पे बढ़ता है तो उसका असर जिस्म पे पड़ना शुरू होता है। पहले औरा को बीमार करता है, बीमार होता होता आपके जिस्म पर आता है। इससे पहले इसको समझने के लिए, चूंकि हमारे सामईन बहुत तवज्जो से इसको सुन रहे हैं, तो उनके इल्म में मजीद इजाफे के लिए और उनके भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए मैं कुछ चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो उसको सुने, ताकि हमारी हमारी जो आगे जो 11-12 हफ्ते जो चलेंगे, चूंकि इसके गेट चलने इसी से मुतलका हम लोग इलाज मुआवजा भी पेश करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इलाज मुआवजा बयान करना नहीं है। हम इसके जरिए ही चाह रहे हैं कि आपको एजुकेट करें कि आप अपना ख्याल बीमार होने से पहले कैसे रख सकते हैं, बीमार होने के बाद डॉक्टर तक पहुंचने तक कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद उनका बर्डन कम करने के लिए मजीद जल्दी से रिकवरी कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजों की एक्स्ट्रा सपोर्ट हासिल करते हैं। सबसे पहले देखें, समझने की चीज ये कि ये तिब है क्या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अमूमन लोगों का
कि मिसकंसेप्शन ये है कि तिब्बे मशरिक, क्योंकि एक वर्ड यूज हो गया, हमने इस्तेमाल किया, मेरी मैं डिग्री के साथ भी ईस्टर्न मेडिसिन लगा हुआ है, लेकिन जिस तिब को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अमूमन उसके जो अज्जा हैं, बड़े अज्जा हैं, वो है तिब्बी यूनानी, ग्रीको अरब मेडिसिन कहलाती है। और ग्रीस जो है आज भी वो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप में है। अब इस बात को ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम ये कहेंगे कि रोमन और ग्रीक लोगों ने कुछ चीजों को एब्जॉर्व किया। वो इंटरेस्टिंग है, जो मेरी तहकीक में सामने आया वो ये है कि जब इंसान पैदा हुआ, खाया पिया, बीमार हुआ, चोट लगी, उसने किसी न किसी तरीके से डील करता रहा अपने आप। कुछ लोग अफ्रीका में रह रहे हैं, कुछ श्रीलंका में रह रहे हैं, कुछ इंडिया के बाकी इलाकों में रह रहे हैं, कुछ जापान में रह रहे हैं, जो चाइना में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जो भी वट है, कुछ यूरोप में रह रहे हैं, कुछ यकीनन ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे थे। तो उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं था, तो वो लोकली रहते हुए खा पी के या जिंदगी गुजारते हुए वो बीमार हो रहे थे। और बीमार होने की के लेवल्स थे। ये नहीं कि सिर्फ वो पेट उनका खराब हो रहा है, पेट खराब है तो उनकी नींद पूरी नहीं हो, नींद पूरी नहीं हो, इससे इंटरकनेक्टेड है। नींद पूरी नहीं हो रही तो अब उसका गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है तो वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है तो आपस में सोचली वो खराब हो रहे हैं, सोचली वो खराब हो रहा है तो तनहा हो रहा है, तनहा हो रहा है तो वो नफसियाती तौर पे अपने आप को डाउन महसूस कर रहा है, डाउन महसूस कर रहा है तो वो अपने खुदा से, अपने जो भी उसका तरीका इबादत उससे भी दूर हो रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है। तो उसको फिर फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि जी मैं स्पिरिचुअली भी पीछे होता जा रहा हूँ। तो एक बटन पे बटन पे बटन बढ़ता जा रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट कॉज ढूंढनी है, वहां पे मैंने वो जगह डालनी है, वो चीज अपनी आपको कंट्रीब्यूट करना है कि मुझे कैसे इसको निकालना है, कहाँ पे करना है। ये सोशली से ज्यादा गड़बड़ कर दी है या उस गोश्त ने गड़बड़ की थी जो मैंने बंद किया था। ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब इंसान बीमार होता था वो अपने आप को डील कर लेता था। इसको हम ये कहेंगे फोक मेडिसिन कह लें, ट्रेडिशनल मेडिसिन कह लें। लेकिन इसकी इसके जो इसकी बुनियादें कब, इसके असूल कब वजह किए, वो था बुकरात। ठीक है, हिपोक्रेट जिसको कहते हैं, हिपोक्रेट ने कुछ उसका ताल्लुक बना, उसका वास्ता बना, क्योंकि यूनान, ग्रीस, रोमन उसके जमाने में एक सेंटर पॉइंट था। सब लोग वहां गैदर होते थे, जमा होते थे, ये लोग भी वहां जाते थे। तो इसने ऑब्जर्वेशन शुरू की, अपने पहले इर्द गिर्द शुरू की। उनमें से जो ट्रीट होने की जो वजूहत हैं, जो लोग हील हो रहे थे, उसको उसने गैदर कर लिया। मसलन एक साहब के पेट में दर्द हुआ ब्रिटेन में, उसने रोजमरी खाया, उसको लगा पेट का दर्द ठीक होता है, तो उसने रोजमरी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा ही पेट का दर्द हुआ ईरान वालों को, उन्होंने वहां पे पुदीना खाया, उससे ठीक हो गया। ऐसे श्रीलंका में हुआ पेट का दर्द, उन्होंने काली मिर्च खाई, ठीक हो गया। ऐसे ही पाकिस्तान, इंडिया के अंदर उन्होंने खाया, उन्होंने अजवाइन खाई, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं? तो हिपोक्रेट ने देखा कि इसमें काली मिर्च दवा नहीं है, इसमें पुदीना दवा नहीं है, इसमें ढूंढना है मर्ज की वजह। तो उसने उन उसूलों को समझते हुए कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की। उसने कहा कि जो बीमारी है वो ब्लड में, और ब्लड के अंदर चार बुनियादी अनासर है, फोर एलिमेंट्स मशहूर, आग, हवा, पानी। ठीक है, आग, हवा, पानी मेन बुनियादी तौर पर, और मिट्टी चौथा आंसर हो गया। तो इनके फिर इफेक्ट्स हैं, इनकी फीलिंग्स कैसे आएंगी आपकी बॉडी में जब इनका दर्जा ऊपर नीचे होगा ब्लड के अंदर। अब जदीद साइंस भी ऐसी कह रही है, जैसे मैं मसल में हम ये कहते हैं कि आपके अंदर मिट्टी के अज्जा का बढ़ गया। मिट्टी के अज्जा से मुराद ये है कि ड्राई जो हैवी मटेरियल मैटर है उसका लेवल कितना है आपकी बॉडी में। इंसान क्या है, किसी से पूछे कहते हैं जी 90% पानी है, को कहता है 78% पानी है ना। तो एक हो गया पानी, फिर हो गया मैटर, ठोस अज्जा। तो ठोस अज्जा आजकल मॉडर्न साइंस कहती है मिनरल्स की सूरत में, वाइटामिन की सूरत में, है ना। तो उसको हिप्पोक्रेट ने कहा मट्टी। उसने लेकिन खाली ये नहीं कहा कि ये मट्टी है, उसने कहा इसका अपना एक मजाज है। क्योंकि हमें सुनने वाले ज्यादा लोग कश्मीर से हैं, आपने बताया पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, पंजाब से ज्यादातर लोग हैं। वो लोग समझते हैं कि गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, खुश्क क्या होता है, बलगमी क्या होता है, तर क्या होता है। सुनते हैं ना कि पेट में गर्मी हो गई है। ये कोई गप नहीं है, हिपोक्रेट ने ये वजह किया था कि जब वो मट्टी के हिसाब बढ़ेंगे तो वो खुश्की बढ़ेगी।
इसलिए जो हमारे पास आज के दौर में भी कोई लोग आके कहते हैं मेरे मुंह में खुश्की है, सर में खुश्की हो रही है, तो हम ढूंढते हैं कि इसके जिस्म में कहीं आयरन तो नहीं बढ़ गया, कहीं मिनरल्स तो नहीं ज्यादा खाए, ऐसी गजाएं तो नहीं खा रहे जिसमें मिनरल्स ज्यादा है। हम ढूंढ के इंशाल्लाह इस नतीजे पे पहुंचते हैं और हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कि भाई आपने ये नहीं खाना। उसकी वजह से होने वाली जो तकलीफ है उसका एक साइकिल है कि उसको किसके जरिए निकालना है। तो बीमारी के ऊपर है कि उसको हमने ब्लड के अंदर पानी बढ़ा के करना है, पानी के अंदर हीट पैदा करके करना है, या पानी के अंदर कुछ और तरीका तैयार करके उस ब्लड में से उस चीज को ड्रेन आउट करना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम होलिस्टिक अप्रोच। अब उन्होंने 4 किस्म के, जो बोक्रात ने या हिपोक्रेट ने, फिर गैलन जिसको जाली न्यूज कहते हैं, आगे अगला काम आगे उसने किया मॉडर्न साइंस में उस जमाने के हिसाब से। उसके बाद अगला जमाना आया स्पेन के आसपास था एफसीना जिसको कहते हैं, कैनन फिर तिब लिखी गई, आज तक पढ़ाई जाती है वो तिब में भी। और मॉडर्न साइंस की बुनियाद कैनन ऑफ तिब है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। स्टूडेंट एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें पता है कि उसकी बुनियाद क्या है, कैनन ऑफ तिब है, जो एफसीना हकीम तिब यूनानी इसकी बुनियाद है। तो मॉडर्न साइंस भी उसी बुनियाद पे खड़ी है। उसने जो टूल्स हैं ठीक करने के वो दूसरे इस्तेमाल कर लिए आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से, बुनियाद उनकी भी वही है, कोई उसमें और उसमें फर्क नहीं है। नंबर वन, जब यही यूनानी तिब मशरक में गई तो तिब्बे मशरक खिला रही है, इंडिया में गई आयुर्वेदा खिला रही है, चाइना में गई तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन खिला रही है। अब जो कुछ जो बचा हुआ है पुरानी साइंस में से वो यूनानी साइंस की के बकाया जात है। ठीक है, तो अब उन्होंने 4 किस्म के करैक्टर भी बना दिए। जब यही खुश्की जब जिस्म में बढ़ती है तो ऐसा बंदा, फर्ज कर पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा, वो अपीयरेंस कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। मेरे पास क्लिनिक में बंदा आएगा, वो क्लिनिकली ड्राई लगेगा, खुश्क लगेगा, ब्लैकिश लगेगा, आंखें अंदर को गई हुई, हर चीज सुकेड़ की तरफ है। मट्टी क्या करती है, सख्त चीज है, ठंड ठंड की अलामत में क्या होता है, हर चीज सुकड़ना शुरू होती है। क्रैक्स पड़ेंगे, स्किन पे क्रैक्स पड़ेंगे, स्किन की डिजीज लाएगा। क्या क्या यहाँ पे हो सकता है वो क्रैक्स कहीं पर भी पड़ सकते हैं। हो सकता है वो कहे कि मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही है, हो सकता है वो कहे कि मुझे स्टोमाटाइटिस हो रहा है, मुंह के अंदर क्रैक्स पड़, स्किन में पड़ेंगे तो स्किन में वो कहेगा कि जी मुझे डर्माटाइटिस हो रहा है, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी खुश्की की लापते फिर बढ़ना शुरू हुई। हार्ट की तरफ जब वो कंसंट्रेट करेगा तो क्या करेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आपकी रगें सुगड़ गई हैं। और बढ़ेगा तो कहेंगे सुगड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा उसका, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा तो अब आपको क्या हुआ कि वो वॉल्व लीक कर गए जी, है ना। तो मुझे करना क्या है फिजिशियन, मुझे क्या करना है कि मुझे समझना है कि क्या ये अलामतें खुश्की की वजह से, गर्मी की वजह से है, कली की वजह से है, या कोई और वजह है। मुझे वो ढूंढना है और उसमें से इसको निकालना है। तो एज ए फिजिशियन मैं क्या करूंगा, मैं उन खुश्क की पैदा करने वाली चीजों से आपको दूर कर दूंगा। मैं कहूंगा कि आप, अच्छा ऐसा बंदा न शक्की भी होगा, गुस्से वाला तो होगा, शक्की भी होगा, उसको नींद भी कम आई है ना, तो मैं कहूंगा कि आप ऐसे सारी चीजों को छोड़ने की कोशिश करें जो आपको इस टाइप की खुश्क मजाजी की तरफ लेके जाते। लेकिन मैं पहले गजा से शुरू करूंगा। तो मैं कहूंगा कि भाई आप खट्टी चीजें ना खाएं, टिन्नू माल्टा, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, गोश्त कम कर दें। ठीक है, चिप्स पोटैटो हुए ना हमारे, यस, फिश एंड चिप्स इंग्लैंड के मशहूर हैं, थोड़ा सा कुछ दिन उनसे दूर रहें। ठीक है, लेकिन क्या वो खाली सब्जी खाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो हर डाइट हर एक के लिए नहीं है, इसको समझना है। मछली की गजा कुछ हो रहा है, भैंस की गजा कुछ हो रहा है, चीते की गजा कुछ हो रहा है ना। सब्जी अच्छी चीज है बकरी के लिए, चीते के लिए अच्छी चीज नहीं है। गोश्त अच्छी चीज है चीते के लिए, बकरी के लिए नहीं है। तो हकीम साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ये जो बदन है, ये मिट्टी का जो बदन हमारा, ये कितनी एक जबरदस्त एक क्रिएशन है। यस। आपको मैं सुन रहा था तो देखे ना, डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट इकसाम के खाने खाते हैं। वहाँ की इन्वायरमेंट्स डिफरेंट है। कुछ गर्मी और ड्राई इलाके हैं, कुछ गर्मी और वेट इलाके हैं, कुछ ठंडे इलाके हैं, और अपने अपने खाने हैं। लेकिन ये जो हमारा बदन है, इस सब को कैसे अडेप्ट करता है और इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उनको इस्तेमाल करके फिर खारिज भी करता है। बस मेरे जहन में ये बात है जी कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, एक कितनी ज़बरदस्त तख्लीक है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत। मैं कहता हूँ इस कायनात की सबसे मुश्किल तख्लीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, और इतनी वेल मेंटेन है, इतना अच्छा तरीके से चलाती है अपने आप को।
बाजार लगता है वो अपने आप को खुद चला रहा है, लेकिन आपको पता है बड़ा मजबूर किस्म की मशीनरी है ये इंसान की, कहीं पर भी स्टॉप हो जाती है किसी भी वक्त। ठीक है, It's तो इसको अपने आप it's को मेंटेन करना पड़ता है। see it's so complicated या and so fragile at the same time. लेकिन बहुत ताकत रखने वाली और ड्यूरेबल भी साथ साथ। या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो होलिस्टिक अप्रोच है इसको समझने के लिए। तो आपने आप के जो कंटेंट है उस पे आप लिखते हैं कि जो होलिस्टिक हेल्थ है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, आप इसके साथ इन्वायरमेंटल भी, स्पिरिचुअल का आप जिक्र कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मेंटल एक है, फिर इंटेलेक्चुअल उसके जी साथ जुड़ा हुआ, फिर प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड देन कल्चर वेलबीइंग। ये आपने या सारा सिस्टम जो है ना इसको आप कैसे ये करते हैं, और हाउ हाउ डू यू अप्रोच दिस, बिकॉज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें यहाँ स्किन की प्रॉब्लम है तो वो आपको क्रीम दे देते हैं बस। इट्स वेरी मोनो डायरेक्शन, बस सिंगल है कि यू डोंट नीड टू या थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बस इस ये जो हुआ है इसको गायब करना है क्रीम के जरिए। लेकिन अगर या आपके पास कोई स्किन का इमराज आता है, या आप थायराइड का, किसी ने पूछा कि एक्टिव थायराइड है किसी के पास, या अगर एक्टिव थायराइड का एक आदमी आपके पास आए, तो ये होलिस्टिक अप्रोच कैसे आप इस्तेमाल करेंगे उसके लेकिन हल अब के लिए। हाइपो, आई थिंक वो साहब ने जो पूछा वो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, वो एक्टिव थायराइड, हाइपर एक्टिव, ओके। हाइपर एक्टिव थायराइड, या हाइपर एक्टिव देखें, तिप इसको कैसे डील करेगी। तिप कुछ चीजें बता देगी आपको कि भाई आपको ये चीजें नहीं खानी चाहिए, कि चूंकि उस एक्टिविटी की वजह से ब्लड में कुछ चीजें ज्यादा आपको हाई मिलेंगी। मसलन हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मरीज जो है आपको लगेगा वो सुकड़ गए, आपको लगेगा। अभी अभी मैंने चूंकि मिसाल दी थी, अब आपके जहन में खुद ब खुद आएगा इंशाल्लाह, हमारे सुनने वालों के भी जहन में कुछ खुद जवाब भी आप मुझे आप खुद देंगे, मैं नहीं दूंगा। हाइपरथायराइडिज्म के मरीज की अलामतें मैं बताता हूँ और आप वजह बताएंगे, ठीक है। एक मरीज है, सुखड़ा हुआ है, उसकी आंखें बाहर हैं, हल्के पड़े हुए हैं, उसके सूखता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइनेस हो रही है, बाल उसके कम होना शुरू हो गए, क्रैक्स पड़ रहे हैं स्किन पे, कभी यहाँ पे इसको एक्जिमा हो रहा है, कहीं यहाँ पे सोराइसिस हो रहा है, ठीक है। तो क्या जहन में आ रहा है, अभी हमने क्या डिस्कस किया है, उसके अंदर क्या चीज ज्यादा हो रही है, उसके अंदर खुश्की ज्यादा हो रही है, खुशकी है, ड्राइनेस, यस। ड्राइनेस ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कैल्शियम लेवल्स को समझने की जरूरत है। वो कैल्शियम वाली गजाओं से दूर रहें, आयोडीन वाली गजाएं ज्यादा इस्तेमाल करें, अपना ज्यादा ना करें, कम करें। कैल्शियम वाली चीजों से मुराद सिर्फ वो कैल्शियम नहीं कि जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। देखिए कैल्शियम वाली गजाएं कौन कौन सी हैं, उससे दूर है। अक्सर ये होते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि कैल्शियम हर बंदे के लिए जरूरी है और हर वक्त जरूरत है, हर कंडीशन में जरूरी है, खासतौर खवातीन के लिए ये थोड़ा सा इशू है भी और जरूरत भी है उनकी। तो वो क्या करते हैं कि हाइपर थायराइडिज्म के अंदर कैल्शियम नहीं चाहिए आपको, आपको उस दौरान दूर रहना है, आपको कैल्शियम वाली चीजों से दूर रहना है, खुश्क गजाओं से दूर रहना है जिसमें गोश्त वोश्त है। तो क्या होगा कि बॉडी के ऊपर से लोड हटेगा, जब बॉडी से लोड हटेगा तो सेल्फ हीलिंग उसकी खुद बहुत काम करने लगेगी। तिप क्या करती है, आपको हील करने में, आपकी बॉडी को हील करने में मदद देती है, बॉडी खुद को खुद हील करती है। ये दूसरा बहुत तरीका अहम ये है कि बात है, जी हाँ, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि जो बदन है उसके उसका नेचुरल जो मैकेनिज्म है इज टू सेल्फ हील ऑल द टाइम। जी और हाँ, फिर हम कैसे बाकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं to speed up the healing or to make sure we continue healing। जी हाँ। तो इसमें हम ये करेंगे, जैसे अब बॉडी के अंदर से हम उनका बर्डन हटाने के लिए, उन खातून है या साहब है जिनका भी सवाल है, उनको हम कहेंगे देखें, आपको पहले तो ड्राई चीजों से हटना है। नंबर दो, आपको ऐसी चीजों पे जाना है जो उस खुश्की को बाहर निकाले। अब हम उसकी मिसाल भी कहाँ से लेते हैं, हम लेंगे मौसम से। चूंकि यकीनन ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह के किसी इलाके से होंगी, तो ये बहुत आसानी से समझ जाएंगी कि मौसम में सर्दी के बाद क्या शुरू होता है, बहार या गर्मी। उनसे कहें कि जब गर्मी शुरू होती है ना, तो सर्दी की सारी अलामतें बाहर चली जाती हैं।
आपके, चाहे वो बाहर है, चाहे आपके इर्द गिर्द है, चाहे आपके अंदर है। तो अपने इर्द गिर्द सारा गर्म माहौल रखें, आपके खाने में भी गर्म चीज होनी चाहिए, मसाला भी गर्म होना चाहिए हर वक्त। ये दही दूध लस्सियां बोले खत्म बंद। अगर हाइपर थायराइडिज्म का इलाज करना है, उनसे बोले इससे दूर हो जाए। अदरक एक बहुत अच्छी चीज है उनके लिए। जिंजर टी ये पिए, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिला लें, वो डाल के पिए। और अगर आसानी से अवेलेबल है इंग्लैंड में या पाकिस्तान इंडिया से कोई आते जाते हैं, तो कस्तशीरी एक दवा है, ड्रग, अब एज ए ड्रग जो हम क्या सूट उनके लिए सिलेक्ट करें, कस्तशीरी। कोस्टस रूट कहते हैं इसको इंग्लिश में, कोस्टस के नाम से भी मिल जाती है। उनको बोले कि उसको ग्राइंड करके रखे, आधी चमची 2 टाइम इनको लेना चाहिए, किसी शहद वगैरह में ऐड करके उसको चाट लें, ताकि वो यहाँ पे रुक के इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करें। असल चीज है सोजिश, इन्फ्लेमेशन को कम करें, बॉडी खुद हील करती जाएगी, हील करती जाएगी। साथ में जिंजर एंड ब्लैक पेपर का की टी लेते रहे, 2 मरतबा लें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतरी आना शुरू हुई। और साथ में ऑलिव ऑयल हल्का सा अप्लाई करें। वो यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा हाइपर थायराइडिज्म में, कहीं आपको नजर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन उनको अप्लाई करना है, ये लाजमी करना है, ठीक है। सही। और अच्छा हुआ कि आपने हाइपर एक्टिव थायराइड का बताया होगा, क्योंकि शायद हमारे सुनने वालों में से कोई हो, लेकिन एक्चुअली जिन्होंने टेक्स्ट किया था वो अंडर एक्टिव थायराइड था, जिसे मोटापा होता है और टोटल ऑपोजिट होता है। फिर उसके हवाले से भी कुछ मजीद तफसीलात दे दें। हाँ, मैं सुन नहीं पाया आपकी। सॉरी, जो दरअसल सवाल था वो अंडर एक्टिव थायराइड का था, यस, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिनके पास भी हाइपर एक्टिव होगा तो। इसलिए मैंने पूछा, आपने हाइपर थायराइडिज्म का कहा या हाइपोथायराइडिज्म का कहा? मुझे पहले समझ में आया था अंडर एक्टिव का मतलब हाइपोथायराइडिज्म। अब उसके हम अगेंस्ट चले जाएंगे, हाइपो में ये भी आसान हो जाएगा। हाइपो में क्या होता है? हाइपो में हम ये कहेंगे बलगम के बिगाड़ की बीमारी। बलगम की बेगार की बीमारी, वेरी इंटरेस्टिंग। बॉडी के अंदर लिक्विड्स का लेवल बढ़ जाना, सॉल्ट और बाकी चीजों का लेवल कम हो जाना, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे पेशेंट, अमूमन बाय बर्थ भी होता है, अमूमन कुछ चीजों के इंट्रैक्शन की वजह से भी होता है, कुछ केमिकली भी कुछ चीजें इनटेक करने से भी होता है, लेकिन ज्यादातर परमानेंटली कुछ गजाएं खाई जाती हैं, जैसे चावल लौकी कद्दू तोरई टिंडा भिंडी, इस टाइप की चीजें अगर मुस्तकिल ली जा रही है, तो वो क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाएगा, और उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की अलामतें सामने आएंगी। हाइपो जब सामने आता है तो जिस्म फूल चुका होता है ना, वो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है, फिर वो डायग्नोज होते होते टाइम लगता है कि जी आप हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है। तो तब इसको कैसे डिस्कस करेगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके डिस्कस करेगा। उसके अंदर वो सारी चीजें खिलवाएगा जिस चीज से मैंने अभी मना किया था। हम ये कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो लौंग और दालचीनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी मैं ड्रग्स के नाम नहीं ले रहा खुद ही, कि वहां इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि ड्रग्स को हमें ऑनलाइन ऐसे उसको डिस्कस करना मुनासिब भी नहीं है। ड्रग्स सही। जो प्योर ड्रग्स है, ठीक है, हम इसकी कॉमन चीजें कुछ ड्रग्स की जिसकी साइंटिफिक, जिनकी थोड़ी स्टडीज मौजूद है ना, ऐसे मसाला जात की शक्ल में या ऐसे कॉमन यूज होने वाली हर्ब्स एंड बुशेस एंड स्पाइसेस, हम उसमें से मदद लेना चाहें अगर, तो वो है लौंग और दालचीनी, सिनेमन एंड क्लोव्स। उनको उनका डिकॉक्शन ले लें, उनको आम कहवा बना के पी लें, जैसे चाय बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 दाना 2 दाने लौंग डालें। अच्छा, अब भी ऐसा ही करना है कि यहाँ पे फिर इनको थोड़ी सी आ, कुछ ऐसी चीजें, आटा, कुछ आटे में नमक मिला लें, कुछ ऑयल ऐड करके यहाँ पर टकोर की जाए, ताकि वहां पे थोड़ी सी ड्राइनेस पैदा, अब इसके अंदर ड्राइनेस पैदा की जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या बाकी दवाएं इनको लेने की जरूरत पड़ रही है, लेना चाहती हैं बिल्कुल लेते रहें। हम दवाई के हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करें, हम हार्मोनल लेवल पे जाके हार्मोन्स नहीं देंगे। हम उनके ऑर्गन को डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्गन्स को तैयार करेंगे, राजी करेंगे या मजबूर करेंगे वो अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। हकीम तो हम साहब। ये कहेंगे कि इनको कुछ ऐसी गजाएं नहीं खानी चाहिए
जो इनकी खराबी करती है, चावल वगैरह जो इनका मैंने नाम लिए, वो नहीं खाना चाहिए, और इनको लौंग दालचीनी लेना चाहिए। सही। और इसी अभी तकरीबन आधा मिनट से ज्यादा रह गया है, तो देखें हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जबरदस्त बातें हुई। मुझे एक तो टाइम का भी पता नहीं चला, और एक हाँ दो गाने भी थे उसका भी दिल नहीं आया। तो ऐसे ही प्रोग्राम होगा। अभी टेक्स्ट भी आया, सोबिया ने टेक्स्ट किया, एंजॉयिंग द शो, एक्सीलेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही प्रोग्राम को जारी रखेंगे एवरी वेडनेसडे बिटवीन 5 and 6 o'clock। तो अगले हफ्ते का जो एपिसोड होगा वो होगा हर्बल मेडिसिन एंड इट्स रोल इन यूनानी हीलिंग। तो हर्बल रेमेडीज इन तिब यूनानी। तो हकीम साहब, अब वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही बातों को जारी और सारी रखेंगे अगले बुध को 5 से लेकर 6 बजे तक। इंशाल्लाह। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।